Welcome students. Now let us move towards another topic in applications of derivatives, in applications of integrals, applications of integrals. We will move towards area between two curves. Area between two curves. Two curves. If we have y equal to fx and y equal to gx are two curves intersecting at x equal to a and x equal to b. Like this, if we have two curves whose graph is this is the graph of one curve y equal to fx, and this is the graph of another curve y equal to gx. They intersect at point x equal to a and x equal to b. What will be the area bounded by these two curves? That means this area we have to calculate, area of this shaded region. Then area between these curves is given by these curves is एरिया क्या निकलेगा, यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो तो ये बन गया x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b. a b c d e और f यहां पर रखो. देखिएगा अगर हम एरिया लेंगे a b c e d, एक एरिया ये है एरिया ऑफ ए बी सी ई डी, और एक एरिया लेंगे ए बी सी एफ डी. एरिया ऑफ ए बी सी एफ डी, इनका माइनस अगर करेंगे एरिया ए बी सी एफ डी माइनस एरिया ए बी सी ई डी, इस रीजन का एरिया, देन वी विल गेट the required area of DECF. This will be equal to area of CEDF. Area of CEDF will be equal to area of ABCFD minus area of ABCED. And you know this is equal to integral A to B fx dx minus integral a to b gx dx. Minus integral a to b g. This can be in this way we can find area of this region. Now let us move towards exercise 8.2. Exercise 8.2. Exercise 8.2. Question first says, what is question first? Find the area of the circle 4x square plus 4y square equal to 9, which is the interior of the parabola x square equal to 4y. The circle is 4x square plus 4y square equal to 9, and parabola is x square equal to 4y. X square equal to 4y. Name this first and this second. Now this is a circle. इसका सेंटर कहां पर है और इसका रेडियस कहां पर है, देखिएगा. फ्रॉम फर्स्ट में हम लिख सकते हैं x square plus y square equal to 9/4. दिस 4 कॉमन निकालो और इसको राइट साइड में ले जाओ तो ये डिवाइड बन जाएगा. दिस और it can be written as x square plus y square equal to 3/2 whole square. So it is a circle with center at origin and radius 3/2. This is the circle, this is radius, center at origin 0, 0 and 3/2 is this. So here x is equal to 3/2, यहां पर x है. अब पैराबोला देखेंगे, x तो स्क्वायर है तो y is always positive.
जब y पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव है, अपर दो क्वाड्रेंट्स है उनमें y पॉजिटिव है, तो ये इस तरह बन जाएगा पैराबोला। हमें अब क्या निकालना है, ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड area of the circle which is interior of this parabola. That means we have to find area of this. This area हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये एरिया हमें निकालना है। तो जो ये एरिया है इसके जो दो पार्ट्स है, ओ ए बी ओ सी बी ओ, ये एरिया और ये एरिया, दीज आर इक्वल बिकॉज दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट y axis and this circle is also symmetric about y axis, so these are equal. So we have when we have to find area of OABC, we can write it, this required area is equal to twice area of OAB, twice area of OAB. This is the area under this curve and above this curve. That means this is the area between these two curves, between these two curves. How can we find it? Now solve first and second, solve first and second, इसको सॉल्व कीजिएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहां पर वैल्यू दीजिएगा यूजिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, तो ये बन जाएगा 4 into 4y प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिएगा एक्स स्क्वायर की बदले 4y दीजिएगा, दिस इंप्लाइज 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। नाउ फाइंड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म। 4 9 is 36 and this is 16 का क्या बन जाएगा, 4 9 is 36, 6 is 36, 18 2s are 36, 18 minus 2 is 16। देखिएगा 4 into minus 9, this is minus 36। when you split this middle term, माइनस करके हमें 16 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए, तो 18 2s are 36, 18 minus 2 is 16। तो क्या बन जाएगा हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो कॉमन निकालिएगा, 2y तो कॉमन निकलेगा, 2y प्लस 9 यहां पर कॉमन, माइनस 1 कॉमन निकालिएगा, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 9 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें क्या आ रहा है, 2y प्लस 9 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद ये हमें जरूरत है ये इक्वेशन, क्योंकि हमें जब एरिया निकालना है तो ये इनकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो इनको ऐसे ही रखिएगा। तो 2y प्लस 9 इक्वल टू 2y इक्वल टू 9 और 2y इक्वल टू 1। 2y plus 9 into 2y minus 1 equal to 0. Either this is 0 or this is 0. Then 2y equal to minus 9 or 2y equal to plus 1. This implies y equal to minus 9 by 2 or y equal to 1 by 2. Y equal to minus 9 by 2 or y equal to 1 by 2. But y is not negative. But from second में आप देखिए y is not less than 0. This implies y is not equal to minus 9 by 2. So y is equal to 1 by 2. Using in second, अब second equation में use करो, x square क्या बन जाएगा 4 into 1 by 2. Using in equation second, x square is equal to 4 into 1 by 2.
2 2s are 4. This implies x is equal to plus minus root 2. तो हमारे पास क्या वैल्यू निकला? x का वैल्यू जो निकला वो इस तरह देखिएगा. So points of intersection are कौन कौन सा पॉइंट निकला? x का वैल्यू निकला √2, y इज इक्वल टू 1/2. x का वैल्यू निकला -√2, y इज इक्वल टू 1/2. तो ये वैल्यू है ए पॉइंट जो है ए, ये है √2, 1/2, और सी जो पॉइंट है सी है √2, -√2, 1/2. ये निकला वैल्यू. अब हमें एरिया निकालना है. एरिया किस तरह निकालेंगे? हाँ, इसकी इक्वेशन यहां पर है और इसकी इक्वेशन यहां पर है. हमें इसकी जरूरत नहीं है. देखिएगा हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ AOCBA is equal to twice area of OABO. ये एरिया किसके बराबर निकलेगा? अब देखिएगा यहां पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे. यहां पर x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू वो √2 है. x इज इक्वल टू √2 हियर. अब इसका वैल्यू जो है o, यहां पर लिखिएगा CD लिखिएगा. यहां ODA एरिया जो है वो एरिया अंडर दिस पैराबोला है. ODABO एरिया ये इस सर्कल के अंदर है. अगर इनका माइनस निकालेंगे तो ये एरिया निकल सकता है. तो ट्वाइस एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ODABO माइनस एरिया ऑफ ODAO. तो ये निकलेगा 2 इंटू इंटेग्रल फ्रॉम, यहां पर x का वैल्यू क्या है? 0 है. 0 to √2 y dx माइनस इंटेग्रल 0 to √2 y dx. हाँ, ये y मैंने बोथ केस में लिखा. यहां पर देखिएगा y dx ODABO ये एरिया अंडर दिस सर्कल है. यहां पर इसकी इक्वेशन क्या है? x² + y² इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर. और यहां पर क्या है? x² इक्वल टू 4y. तो अब निकालिएगा यहां y² इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर माइनस x². यहां पर y का वैल्यू क्या निकलेगा? x²/4. y इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है y का. y इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो y पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू की साइन की जरूरत नहीं है. यहां पर -x², तो y का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है. तो एरिया क्या निकलेगा? ट्वाइस इंटेग्रल फ्रॉम 0 to √2 रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर माइनस x² dx माइनस इंटेग्रल 0 to √2 x²/4 dx. अब देखिएगा ये क्या बन गया? a² माइनस x². तो ये बन जाएगा 2 इंटू, a² माइनस x² का बताइएगा वैल्यू क्या निकलता है? ये रूट ऑफ दिस इंटीग्रल जो स्पेशल इंटीग्रल आपने किए थे उनमें क्या निकलता है वैल्यू? ये बन जाएगा x/2 रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 3/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a x/3/2 बिटवीन द लिमिट्स 0 to √2. ये एक वैल्यू निकल गया. तो 2 तो बाहर नहीं रखेगा. 2 इंटू दिस माइनस 1/4 तो बाहर निकलेगा. इसका निकलेगा x³ 1/4 x³ डिवाइडेड बाई 3 बिटवीन द लिमिट्स 0 to √2. इस तरह वैल्यू इसका. अब लिमिट्स दीजिएगा तो वैल्यू इसका निकलेगा.
तो इस तरह आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x minus 1 whole square plus y square equal to 1. x minus 1 whole square plus y square equal to 1. Name this first. And x square plus y square equal to 1. Find the area bounded by these two curves. अब देखिएगा पहली कर्व जो है, it is a circle. It is a circle whose center is at 1, 0. 1, 0 and radius is 1. Radius is 1. And this is also a circle whose center is at 0, 0 and radius is 1. पहले हम इनका रफ स्केच बनाएंगे। तो यहां पर लीजिएगा, ये दिस इज वाली लीजिए। हाँ 1, 0 तो यहां पर है 1, 0. It is a circle whose center is at 1, 0 and radius is 1. 1 तो यहां तक रेडियस आता है, तो ये बन जाएगा इसलिए। ये ऐसे सर्कल बन गया, इसका रेडियस 1 है। दिस इज द सेकंड इज द सर्कल whose center is at 0, 0. इसका सेंटर यहां पर है and it is radius is also 1. Radius is also, so it passes through this point. This is the circle. We have to find area between these two curves. Area between these two curves is, 1 minute please. हाँ ये बन गया रफ स्केच। This is x minus 1 whole square plus y square equal to 1, and this is x square plus y square equal to 1. Now we have to find area bounded by these two curves. That means we have to find area of this OABC. OABC. हाँ यहां तक, यहां पर x इक्वल टू 1 है, ये हम यहां पर x का वैल्यू 1 है, और यहां पर देखिएगा हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस। देखिएगा यहां पर एरिया, ये एरिया जो है ये, दिस इज बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x एक्सिस, दिस इज बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x एक्सिस, सो वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट आल्सो। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिएगा ऑन सब्ट्रैक्शन कीजिएगा इनका, तो क्या निकलेगा x minus 1 whole square minus x square, इसका और इसका सब्ट्रैक्शन कीजिएगा। हाँ दिस माइनस दिस इज 0 प्लस 0, 1 minus 1 is 0. दिस इंप्लाइज, हाँ अब इसका x minus 1 whole square बन जाएगा x square minus 2x plus 1 minus x square equal to 0. A minus b whole square. This and this cancels. This implies 2x is equal to 1. 2x यहां पर लीजिएगा, x is equal to 1 by 2. x is equal to 1 by 2. So यहां पर जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर x का वैल्यू है 1 by 2. ये वैल्यू है x equal to 1 by 2. यहां पर x is equal to 1 by 2. अब देखिएगा एरिया किस तरह हम निकालें। हमें y की वैल्यू, y का जो वैल्यू है वो जरूरत नहीं है हमें, तो हमें x का ही वैल्यू जरूरत है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, एरिया ऑफ OABCO इज इक्वल टू एरिया और ट्वाइस एरिया ऑफ OBCO, ट्वाइस एरिया ऑफ OBCO। यहां पर रखिएगा D पॉइंट, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ OBCO, ये बन जाएगा ODCO, एरिया ऑफ ODCO प्लस एरिया ऑफ DBCD, तो ये बन जाएगा 2 इंटू, हाँ
एरिया ऑफ दिस ODCO ये निकलेगा 0 to 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/2 y dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1/2 to 1 y dx। अब क्या निकलेगा, y का वैल्यू क्या, यहां पर देखिएगा y का वैल्यू, this is the curve under this is the area under this curve, its equation is x minus 1 whole square plus y square equal to 1। और यहां पर है this is area under this curve, its equation is x square plus y square equal to 1। तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहां पर निकलेगा y का वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया क्या निकलेगा इसके बाद देखिएगा इंटीग्रेशन करके, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/2 रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर dx माइनस प्लस इंटीग्रल 1/2 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हमारे पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ 0 to इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, स्पेशल इंटीग्रल, ये बनता है x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। तो सी का वैल्यू हमें जरूरत नहीं है, तो देखिएगा ये क्या निकलेगा, दिस विल बिकम 2 इंटू x/2 एक्स माइनस, हाँ यहां पर x नहीं है, x माइनस 1/2 रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी यहां पर जो वैल्यू है वो देखिएगा, इंटीग्रल फ्रॉम रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, वो बनता है x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। हाँ ये बन जाएगा x के बदले x माइनस 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2, ए के बदले 1 है, 1 स्क्वायर 2 साइन इनवर्स ऑफ x के बदले x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए 1 बनता है। बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1/2 माइनस प्लस है, हाँ यहां पर x/2 ये वैल्यू देखिएगा, ए के बदले 1 है, या अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर 2 साइन इनवर्स ऑफ x/1 बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1/2, यहां से यहां तक, हाँ देखिए 1/2 to 1 है, सॉरी 1/2 to 1 है। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, दीजिएगा 1/2 वैल्यू, ये बनता है 2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब दीजिएगा 0 वैल्यू, 0 माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, ये बन गया वैल्यू पहले इंटीग्रल का, प्लस इसका वैल्यू निकालिएगा, इसका देना है 1/2 to 1/2 दीजिएगा वैल्यू, तो बन जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ, पहले दीजिएगा 1 वैल्यू 1 साइन इनवर्स ऑफ 1/1, यह बन गया अपर वैल्यू। अब लोअर वैल्यू दीजिएगा, माइनस लोअर लिमिट दीजिएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2।
अब क्या निकलेगा ये देखिएगा, 1/2 माइनस 1 इज -1/2 माइनस 1/2, हाँ 1/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1/4 रूट ऑफ 1/2 में से 1 काटो तो -1/2, तो -1/2 होल स्क्वायर 1 माइनस 1/4 बन जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स -1/2 ये बन जाएगा 0, क्योंकि यहां पर 1 स्क्वायर है, 1 माइनस 1 ये बन जाएगा सारा 0, प्लस हाँ ये माइनस है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस बन जाएगा, -1/2 साइन इनवर्स ऑफ -1, ये बन गया एक इंटीग्रल का वैल्यू, प्लस अब देखिएगा ये बन जाएगा 0, क्योंकि 1 माइनस 1 है, 1/2 साइन इनवर्स 1, 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1/4 रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, या प्लस माइनस इज माइनस। अब देखिएगा यहां पर है -1/4 1 माइनस 1/4 -1/4 1 माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा -1/4 रूट ऑफ 4 1 4 माइनस 1 इज 3/4, ये हाँ क्योंकि साइन इनवर्स -1/2 साइन ओमिटेड डाइजेस्ट नेगेटिव साइन, तो ये बन जाएगा -1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, हाँ माइनस माइनस इज प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/4 रूट ऑफ 3/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो देखिएगा क्या वैल्यू निकलता है ये, -1/4 रूट 3/4 -1/4 रूट 3/4, ये बन जाएगा 2x -2/4 रूट ऑफ 3/4, ये भी बन जाएगा 2x -1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये बन जाएगा 2/2 -2/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, तो ये बन जाएगा 2/2 साइन इनवर्स 1। तो अब क्या वैल्यू निकलेगा, 2 1 2 2 तो -1/2 रूट ऑफ, ये बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रूट जब हम 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 2 माइनस दिस कैंसिल, हाँ साइन इनवर्स 1/2 5/6 प्लस 2/2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1 कहां पर होता है साइन 5/2 तो क्या निकलेगा वैल्यू -√3/4 प्लस, हाँ देखिएगा यहां पर 5/2 माइनस 5/6, 6 1 6 2 1 2, 6 में से 2 काटो तो 4 बचते हैं, प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाई 12, 4 1 4 3 तो बन जाएगा π/3 माइनस √3/4 स्क्वायर यूनिट्स, इसका एरिया निकलेगा। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी इसमें कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सभी क्वेश्चन। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसमें से मिसलिनियस एक्सरसाइज का होगा। मिसलिनियस में से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज बेटा।